In previous lectures we did about past indefinite and also present tense, and today let us go towards past progressive or past continuous tense. So past progressive or past continuous tense, first of all, what is its sentence structure? I was cooking food when the phone rang. Sentence structure पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूस क्या है? सब्जेक्ट प्लस was or were, and then fourth form of verb, or we can say ing form. पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूस का जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हम सब्जेक्ट के साथ वाज का इस्तेमाल करते हैं या वर का इस्तेमाल करते हैं. तो वाज जो है इट इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स और सिंगुलर पर्सन्स और सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल ही, शी, it, or we can say I, or any name, singular name. So were is used with plural. They, or we, or you. So this is the sentence structure of past progressive tense or past continuous tense. So now the rule second is where we can use past continuous tense. An action which was already happening at a particular moment. Moment in past. यानी वो एक्शन जो एक खास वक्त में पास्ट में हो जाती है बट इट शुड बी कंटिन्यूस. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वॉचिंग TV when he opened the door. So I was watching TV when he opened the door. यानी यहां पर आप ये देखिए कि दिस इज पास्ट प्रोग्रेसिव. मैं टीवी वॉच कर रहा था, मैं देख रहा था जब उसने दरवाजा खोला. तो यहां पर एक सेंटेंस आ गया वो पास्ट सिंपल में आ गया, और जो दूसरी एक्शन है कि वो जारी थी यानी वो कंटिन्यूस थी. जब मैं टीवी देख रहा था तो उसने दरवाजा खोला. सो वो एक्शन जो पर्टिकुलर
टाइम में, एक पर्टिकुलर मोमेंट में कंटिन्यूस होती है पास्ट में। एंड थर्ड थिंग इज mid of the action, mid of the action in the past। मिड ऑफ द एक्शन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं ये यहां पर बताऊंगा। इस तरह अगर हम लेंगे तो यहां पर हमने स्टार्टेड की, स्टार्टेड डूइंग, और यहां पर हमने फिनिश्ड डूइंग की। जो ये मिड में है वी कैन से was doing। तो क्या है कि पास्ट में तो स्टार्ट हुई है, तो ये पास्ट में आ गया, और जब फिनिश हो गई तो काम खत्म हो चुका है, तो ये इसका लास्ट है। तो जो ये इसके बीच में ये काम हुआ, मिड ऑफ द एक्शन, वी रीड इट इन पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, मिड ऑफ द एक्शन। या इस तरह हम कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई काम 8 बजे शुरू की, 8 AM, और ये काम मैंने फिनिश किया 12 बजे। तो ये जो बीच में ये 9, 10 और 11 जो आ गया, और इसको हम पास्ट कंटिन्यूस में लिखते हैं। दैट मीन्स आई was working at 9, 10 or 11 AM। तो इसी को हम कहते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो दूसरा चीज है इसी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में या पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, वी आर यूज्ड सम एक्सप्रेशंस विथ इट। एक्सप्रेशंस जो हम इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड some expressions। For example, I was wondering, or we can say I was hoping, or we can say I was thinking। लेकिन जब हम ये एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू मेक सजेशन or polite request। यानी ये expressions, when we use these expressions, I was wondering, I was hoping, or I was thinking, in order to make suggestions or polite request। Let us give an example। I was wondering if I could use your laptop, और दूसरा जो है फॉर एग्जाम्पल, I was hoping you would be the chief guest। So these are the expressions
we used in past continuous in order to make suggestion or polite request. So what is now past progressive or past continuous tense? Past progressive or past continuous tense, first of all, sentence structure is that subject plus was or were and fourth form of verb. So it is an action which is going in a particular moment in past. And the second thing is, it is the action which is going in the mid of the action. And then we also used some expressions with past continuous tense. So let us move towards past perfect. Past perfect. I had finished work when he reached. This is the example. So first of all, let us see the sentence structure of past perfect. Sentence structure. Here you see subject plus had plus third form of verb. So now what is the sentence structure of this past perfect? Past perfect का जो sentence structure है उसके साथ हम सब्जेक्ट के साथ हैड का इस्तेमाल करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद कौन सी एक्शन इन्वॉल्व हो जाती है इसमें, यानी कहां पर हम यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड व्हेन देयर आर टू एक्शंस इन द पास्ट। जब दो एक्शन जो दो काम होते हैं, द फर्स्ट एक्शन, द फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन or we can say first completed action is in first completed action we use past perfect. And after that action, the other action is used in past simple. मतलब क्या है कि पास्ट परफेक्ट वो एक्शन इसमें इन्वॉल्व हो जाती है जब पास्ट में दो काम हो गए, जो पहला काम खत्म हो जाता है वो हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं और उसके बाद जो काम खत्म हो जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर देंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन I reached the station. तो इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, दिस इज पास्ट परफेक्ट, यानी ट्रेन निकल चुकी थी।
व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, और उसके बाद मैं स्टेशन पहुंचा। तो यहां पर आप देखते हैं कि पहले तो ट्रेन चली गई थी, तो ये एक्शन है ये पास्ट परफेक्ट में है। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, तो ये पास्ट सिंपल में होती है। तो आप कौन सी एक्शन इसमें इन्वॉल्व हो जाती है? वो एक्शन, यानी जब दो काम होते हैं जो पहले खत्म हो जाती है तो हम पास्ट परफेक्ट में लगाते हैं, और जो उसके बाद वो पास्ट सिंपल में। और इसमें एक चीज याद रखना चाहिए कि हम पास्ट परफेक्ट जो होता है, वी कैन नॉट यूज इट ऑन इट्स ओन, यानी सिंगल सेंटेंस, यानी पास्ट परफेक्ट का सिंगल सेंटेंस हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते हैं। हमें दो सेंटेंस जरूरी होनी चाहिए, एक पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, और जो पहला कंप्लीट काम होगा वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो ये पास्ट परफेक्ट है। और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस टेंस। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, मैं यहां पर सेंटेंस लिखूंगा, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? I had been working for 4 years when he joined। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है इसमें आई सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और वी कैन से इंग फॉर्म। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो है कि हम सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें एक्शन जो है वो कौन सी इन्वॉल्व हो जाती है? The action which is continuous in past and another action टेक्स प्लेस, यानी वो एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू होती है, यानी बहुत मुद्दत तक, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद दूसरी एक्शन शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह कहूंगा आपको, he had been working in the department for 4 years when I joined। तो यहां पर आप देखिए कि he had been working in the department for 4 years, यानी वो 4 साल से काम कर रहा था
करता रहा था डिपार्टमेंट में जब मैंने ज्वाइन किया। तो उसका मतलब है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वो एक्शन होती है कि कोई काम चल रहा था तो उस काम में दूसरा आ गया। तो एक हमने सिंपल में लिखा, सिंपल पास्ट में लिखा, और दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट के साथ हैड बीन और फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और ये कहां पर इस्तेमाल हो जाती है? जब कोई काम चल रही होगी पास्ट में, तो उसी काम के अंदर दूसरा काम शुरू होगा, तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। थैंक्स।